हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड एंड फाइन. माई सेल्फ लोहित जिंदल एंड आई वेलकम you all in our next session of INMO flashback series. So guys, in this series, as you guys must be knowing by now, we are solving previous year INMO questions starting with year 2000. So starting with year 2000 and we have done till INMO 2010 already. So 11 years के questions हमने complete कर लिए हैं already, है ना? And all those videos you can find them to be posted on the channel. And playlist भी बना हुआ है, तो आप playlist में जाके भी order wise you can solve and see the videos. So currently guys, we are solving INMO 2011 and with this video today हम उसके भी first 5 questions already कर चुके हैं. So with this video, with the 6th question today, we would have completed 12 years worth of INMO exam papers, right? Starting with year 2000 till 2011. Okay, and जो आज का question है guys, that is based on functional equations. Okay, we'll see that question now. So before beginning, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal and I have done my BTech from IIT Bombay. And I've been teaching mathematics for the various competition exams since past 9+ years, basically since graduating. And I've been teaching for basic IIT JEE, Mathematics Olympiads, KVPY, etc. till now. Okay, and I've had the privilege of teaching very good and brilliant students, right? So who have produced very good ranks, as you can see, right? So it's very good जर्नी. सो गाइज, मैं चाहता हूँ आप लोग भी कुछ अच्छा अचीव करो. आपको कोई भी हेल्प चाहिए, यू कैन enroll in our courses or otherwise you can use these videos on YouTube as well. So आपका फ़ायदा होना चाहिए. That is our whole purpose, कि आप लोगों को सीखने में बेनिफिट होना चाहिए हमारी तरफ से, जो भी हम कर सकते हैं, राइट? सो दैट्स वाई वी हैव डन दिस सीरीज ऑल्सो, कि इनमो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के गाइस सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, राइट? ठीक है. So although yes, some of the solutions like are like जो actual official solutions हैं, but the problem I have seen कि बहुत सारे students को ना जो official solution given भी होता है, written solution भी होता है, उसको भी समझने में दिक्कत आती है, because वो एक तरह से explanation अच्छे से नहीं किया होता है written solution पे, है ना? तो written solution का भी कोई purpose, कोई step कई बार काफ़ी बार समझ नहीं आता है, students get stuck कि भाई ये लिख कैसे दिया, right? And that is the reason we started with this INMO flashback series, कि बच्चों को help होनी चाहिए उसके through, and they should be able to understand the questions much easier, right? And I try to keep the most elegant method in the solution, है ना? क्वेश्चन का कोई भी जो भी मोस्ट एलिगेंट सोल्यूशन है उसको मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. एंड आई होप यू गाइज आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम इट. आई होप सो. ओके, ऑलराइट. तो गाइज चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं. ओके, दिस इज INMO 2011 एंड 6th क्वेश्चन ऑफ दैट. ओके, 6th क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे. फंक्शनल इक्वेशन गिवन है where xy belongs to real set. Okay, so you have to find all such functions which satisfy this condition, okay, this functional equation. Okay, and again, before beginning guys, I'll suggest that you guys please pause the video and try to solve this question by yourself first. आप अपने आप से ट्राई करो इसको, पहले इसको अपना अटेम्प्ट दो, अच्छे से ट्राई करो उसको सॉल्व करने की, है ना? so that you get a good insight later on when you watch the solution. otherwise कोई मजा नहीं है गाइज. अगेन अगर आपने सीधा सोल्यूशन देख लिया ना, समझ में आ जाएगा, आपको इजीली लगेगा कि ऐसा कि बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया है. बट इफ समबडी और एनीवन आस्क यू दिस द सेम क्वेश्चन आफ्टर 1 or 2-3 months, आपसे देखना नहीं हो पाएगा. रीजन बीइंग क्योंकि आपने इसको अच्छे से खुद से ट्राई नहीं किया था. सो यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू गेट अ गुड इनसाइट. आपको ऊपर ऊपर से लगेगा आ गया, बट एक्चुअली में नहीं आया होगा. आई श्योर यू दिस कुड हैपन इजीली. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. भले 1 घंटे के लिए करो यार, इसको टाइम दो. INMO का क्वेश्चन है, रियल एग्जाम में आपको 4 hours मिलते हैं 6 क्वेश्चंस के लिए. सो द लीस्ट दैट यू कैन डू इज गिव इट सम टाइम. 1 घंटा दो इस पे स्पेंड करो. अगर हो जाता है देन दैट इज वेल एंड गुड, इट वुड बूस्ट योर मोरल. और अगर नहीं भी होता है, यू आफ्टर दैट अगर आप जब सोल्यूशन देखोगे, आपने कुछ तो अटेम्प्ट किए होंगे ना, आपको पता लगेगा कि आपको कौन सा अटेम्प्ट सही था, आप कुछ हद तक सही भी कर पाए, और कुछ कोई अटेम्प्ट गलत था तो क्यों गलत था. ठीक है ना? ऑल दोज थिंग्स कंबाइंड विल हेल्प यू रिमेंबर इट एज वेल, एंड लर्निंग में बहुत हेल्प करेगा. It will help you, help in your learning outcome actually. उसमें आपका improvement होगा. Okay, so all right guys, let us see this question now. Let us understand and discuss this question. तो guys आपको पता ही है इसके अंदर sometimes we have to put some values to get some relations and all. तो वहां से स्टार्ट करते हैं. guys मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है, देखो, लेफ्ट हैंड साइड is kind of symmetric, like थोड़ा symmetric. x plus y है, x minus y है. राइट साइड पे यहाँ पे f of x and f of y है, f of x plus f of y है, यहाँ पे सिर्फ f of y है. सो इसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, है ना?
तो एक काम करते हैं गाइस, सबसे पहले तो ना एक सिंपल स्टेप करते हैं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 डाल देते हैं, है ना. लेट अस सी व्हाट हैपेंस. जो मुझे दिख रहा है आई शुड बी एबल टू गेट एफ ऑफ जीरोज वैल्यू, राइट. दैट इज मोस्टली यूजफुल है. सो एक्स और वाई दोनों को 0 डाल दिया, लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0 विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर, राइट, माइनस 4. ओके, एक्स स्क्वायर को 0 डाल रहे हो तो वो 0 ही हो जाएगा, राइट. दिस विल बिकम 0 बिकॉज एक्स को 0 डाल रहे हो. सो यू सी गाइस, क्वाड्रेटिक बन रहा है, राइट. सो लेफ्ट हैंड साइड इज एफ ऑफ 0 का स्क्वायर is equal to, this is 4 times f of 0 का square, right. So of course this will give you 3 times f of 0 का whole square. एक साइड पे ले जाओगे तो this is 0 which will imply f of 0 is 0, and this is one of the very important aspect कि 0 पे फंक्शन 0 है no matter what, ठीक है, ऐसा फंक्शन ही आएगा. ओके, अब एक काम करते हैं, let us do one thing, just put x equal to 0. सिर्फ x को 0 डालते हैं इस बार, ठीक है. एफ ऑफ 0 0 आ गया, हमें यूजफुल होगा. हम इसकी सिमेट्री में सिर्फ x को 0 डालते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, राइट. सो व्हाट विल गेट, एफ ऑफ x, सॉरी एफ ऑफ 0 प्लस y है, सो एफ ऑफ y इनटू एफ ऑफ माइनस y हो जाएगा क्योंकि x 0 है यहाँ पे, राइट, इज इक्वल टू, दिस इज एफ ऑफ 0, राइट, प्लस एफ ऑफ y इसका होल स्क्वायर माइनस अगेन सिर्फ x 0 है तो ये 0 हो गया. एंड also since this y is 0 तो भाई वो भी 0 हो जाएगा, right. this is also 0 ना, f of 0 0 था. so you have an equation f of y into f of minus y is equal to f of y का स्क्वायर. अब इसमें ना ये मत करना कि फैक्टर कैंसिल कर दिया f of y, कभी भी ऐसे नहीं कैंसिल करते हैं, राइट. वी हैव लर्न दिस थिंग सो फार कि ऐसे सिंपली कैंसिल नहीं करना unless we know that it is non zero. so always do this thing, take this to the other side, you'll be able to take f of y common, है ना, and you'll have f of y minus f of minus y equal to 0. तो guys ये दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है. now what does this mean, what can we imply from this or learn from this, we'll see that. okay, मैं थोड़ा यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ. okay, चलो यहाँ पे लिखता हूँ एक बार. so this will give me two conditions, either f of y is 0 itself, कि मतलब फंक्शन ही 0 है, इसका मतलब तो क्योंकि y तो जनरल वेरिएबल है ना, y is a general variable, so f of y is 0 है, या तो फंक्शन ही भाई 0 है, एंड दैट इज एक्चुअली गेटिंग टू, यू कैन एक्चुअली सी इट इज सेटिस्फाइंग द फंक्शन, है ना. अगर फंक्शन ही 0 फंक्शन है तो सारे लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है, राइट हैंड साइड भी सारी टर्म 0 है, तो 0 इक्वल टू 0 इज फाइन, है ना. वो तो सोल्यूशन एक है ही. और अदर केस, अदर वे अराउंड क्या हो सकता है, देन अदर पॉसिबिलिटीज दैट f of y is equal to minus f of y, and what does that mean, that function is even, sorry प्लस आएगा ना, it is plus only, okay, right. so either we get f of y 0 or we get f of y equal to f of, oh sorry, okay, let me write it again. so अगर आप इस ब्रैकेट को 0 डालते हो, you'll get f of y equal to f of minus y. so दो conditions आ गई आपके पास finally. you have two possibilities, either the function is 0 and that is true, so one possibility is there. हमारे final find all functions है ना, so एक function 0 है, that is already there, तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख भी देता हूँ. so first solution is f of x equal to 0, मतलब y हुआ चाहे x हुआ, y को वापस x डाल सकता हूँ ना, so I can keep it 0. so one of the function is that f of x equal to 0 is one of the functions. second भी लिखेंगे, देखते हैं अगर कुछ आता है कि नहीं, but this is a condition that we are getting, f of y is equal to f of minus y, या तो ये आएगा, and that means the function is even function kind of thing, right. if f of x is equal to f of minus x, that means it's of even function, है ना. इस वर्टिकल y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ग्राफ, और फंक्शन सिमेट्रिक है. so using this thing now, let us solve for this thing, that when f of y is equal to f of minus y, for this condition. दूसरे केस में तो पता ही है वो सेटिस्फाई कर ही रहा है, हमने देख ही लिया वो, है ना. for this case that f of x equal to f of minus x, we are solving for this thing. वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, है ना. y को मैंने अगर x लिख दिया, doesn't matter that way, it just means that it is an even function. so let us find what function is there in such case. so f of x is equal to f of minus x, है ना. तो फिर से वापस से आते हैं अपनी इस इक्वेशन पे. क्या करते हैं, y को 1 डाल देते हैं सिंपली. let us put y equal to 1, ठीक है. क्या बनेगा, it will give us f of x plus 1 into f of, right, into f of x minus 1 is equal to f of x plus f of 1 इसका होल स्क्वायर माइनस
4x² इंटू एफ ऑफ वन, राइट, y को 1 डाल रहे तो ये बन गया. नाउ लेट अस डू वन मोर थिंग. दिस टाइम अराउंड व्हाट विल डू इज y को x डालते हैं, y को x लिखेंगे एंड जो x था ऑलरेडी उसको 1 डालते हैं. विल डू दीज टू सब्स्टिट्यूशंस. x को 1 डाल रहा हूँ ओरिजिनल इक्वेशन में और y को क्या कर रहा हूँ, x सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ जस्ट सो दैट लिखने में सिंपल हो जाए. तो गाइस फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, x तो 1 डाल रहे हो तो 1 प्लस y को x डाल रहे हो, सो इट इज f ऑफ 1 प्लस x. ऑल्दो दिस इज सेम एज द अपर जो टर्म जो ऊपर लिखी हुई है जस्ट है ना यहाँ पे. एंड द सेकंड टर्म f ऑफ x माइनस y क्या बन जाएगा, f ऑफ 1, x की वैल्यू 1 डाल रहे हो क्योंकि आप माइनस y है, y की वैल्यू x है, राइट. सो f ऑफ 1 प्लस x इंटू एफ ऑफ 1 माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर किसका स्क्वायर हो रहा है, f ऑफ x, x को आप 1 डाल रहे हो सो f ऑफ 1 प्लस y की वैल्यू x डाल रहे हो सो f ऑफ x, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस 4 टाइम्स x स्क्वायर को आप 1 डाल रहे हो है ना, x को तो 1 डाल रहे हो बट f ऑफ y को x बन गया सो f ऑफ x. दिस इज व्हाट यू गेट इवेंचुअली. गाइस अब एक चीज को नोटिस करना है आपको फ्रॉम दिस थिंग, क्योंकि इवन फंक्शन था, वोंट यू बी एबल टू से दैट यहां से क्या मैं ये नहीं कंक्लूड कर सकता हूं दैट इफ इट इज फंक्शन इज f ऑफ x माइनस 1 तो अंदर वाले टर्म का नेगेटिव साइन क्या होगा, 1 माइनस x, तो दैट शुड बी इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस x, isn't it? f of y is equal to f of minus y, so it is as good as saying y को x minus 1 रिप्लेस कर दो, क्या बना, f of x minus 1 is equal to f of minus of x minus 1 which is 1 minus x. तो ये चीज क्लियर है ना. From this thing I can say by replacing y equal to x minus 1 you'll get this thing. So here on these two equations guys, now consider these two equations, equation number 1 and 2. Don't you think the left hand side is exactly the same? देखो ये दोनों चीजें सेम हो गई ना, राइट. ये दो एक्सप्रेशन सेम है लेफ्ट हैंड साइड के, क्योंकि f ऑफ x प्लस 1 इज सेम एज f ऑफ 1 प्लस x, वो तो x प्लस 1 इज सेम एज 1 प्लस x, राइट. और x माइनस 1 और f ऑफ 1 माइनस x सेम है, वो हमने इवन फंक्शन से पता है ये चीज से, राइट, दैट वी नो फ्रॉम दिस कंडीशन. So using this, left hand sides are equal, which implies right hand sides are also equal. And what is that? F of x plus f of 1 इसका whole square minus 4 times x square f of 1 minus 4x square times f of 1 which is equal to, और इसको भी मैं फिर से लिख सकता हूँ f of x, f of 1 plus f of x है तो एक ही बात है f of x plus f of 1 इसका whole square minus 4 times f of x, राइट. सो गाइस सब कुछ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे आप देखोगे. सो दिस होल स्क्वायर कंप्लीटली कैंसिल, सेम टर्म है दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा. जो बाकी बचेगा उसमें नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद इज, यहाँ पे लिखते हैं x स्क्वायर f of 1 इज इक्वल टू f of x, राइट. सो इट्स लाइक सेइंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया आपके पास. ओके, लेट मी हाईलाइट इट. ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया. सो व्हाट डज दैट मीन, अब आपको क्या मिलेगा वहां पे. सो यू कैन बेसिकली से f of x इज ऑफ द फॉर्म, देखो x स्क्वायर टाइम्स f of 1 है ना. अब f of x, f of 1 तो कांस्टेंट है कुछ, isn't it? f of 1 तो कांस्टेंट है कुछ, सो आई कैन से कि दैट इज c, लेट्स से, है ना. सो f of 1 टाइम्स x स्क्वायर आया आपके पास, लेट अस से इट इज c x स्क्वायर, राइट. कुछ c कांस्टेंट होगा. अब लेकिन वो c कैसे ढूंढें, हाउ टू फाइंड दैट c, राइट. सो व्हाट यू कैन डू हियर इज, आप सिंपली f of 1 की वैल्यू निकालने निकले हो या फिर f of x की वैल्यू c x स्क्वायर है ना, तो जो गिवन एक्सप्रेशन है आप उसके अंदर फिर से कुछ वैल्यूज पुट कर सकते हो. लेट अस पुट y इक्वल टू 0, ठीक है ना. y को 0 डालेंगे तो let us see, or shall we put both values as 1? Okay, let us think. 1 की वैल्यू कैसे निकालें, सिंपल काम है ना. x और y दोनों को 1 डाल देते हैं, सिंपल काम करते हैं. लेट अस डू वन थिंग, x इक्वल टू y इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में. क्या मिलेगा, f of 2 into f of 0 is equal to f of x plus so f of 1 plus f of 1, so 2 times f of 1
का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 इंटू एफ ऑफ 1, ठीक है ना। सो सी गाइज, एफ ऑफ 0 तो 0 है ना, ये तो 0 हो गया, एफ ऑफ 0 तो 0 है, सो दैट्स इट। सो यू गेट 4 टाइम्स एफ ऑफ 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एफ ऑफ 1, राइट, राइट हैंड साइड 0 है, इसमें भी फिर से 4 कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली गाइज अगेन यूल हैव टू केसेस, देखो यहाँ पे भी एफ ऑफ 1 कॉमन, एफ ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो गाइज यू नाउ हैव टू पॉसिबिलिटीज, या तो एफ ऑफ 1 0 है ना, दिस हैज टू पॉसिबिलिटीज, आइदर एफ ऑफ 1 इज 0 और एफ ऑफ 1 इज 1, करेक्ट। अब देखो गाइज एफ ऑफ 1 बीइंग 0, एक्चुअली यू कैन डिसरिगार्ड दिस थिंग, और अगर मानते भी हो तो 0 ही आ गया ना फंक्शन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। दिस इंप्लाइज द फर्स्ट पॉइंट, ये वाला, it implies that f of x is 0, वो already counted है, but what does this imply, f of 1 equal to 1 implies that second function f of x, देखो अगर x c की वैल्यू 1 ही हो गई, f of x 1 की वैल्यू 1 हो गई, it means f of x is x square, right, this implies this is the function। तो दो फंक्शन आ रहे हैं इवेंचुअली गाइस आपके पास, you have two kind of functions, और इनको पुट करके चेक भी कर सकते हो आप, 0 तो करके देख ही लिया था हमने, ओरली हो जाता है वो तो चेक, सारा ही 0 हो जाएगा। और f of x equal to x square you can check here, it is x plus y square, x minus y square, x plus y का whole square minus 4x square y, x square y square, right, तो वो बन रहा है, बिल्कुल पुट करके दिख जाएगा आपको, ठीक है। So guys, eventually finally you have got this solution that there are two functions that are possible which would satisfy this functional equation। So one could be f of x equal to 0 and the other one is f of x equal to x square, वो कांस्टेंट की वैल्यू, उसके कोफिशिएंट की वैल्यू 1 आ रही है, राइट। सो गाइज आई होप आप सबको मजा आया ये क्वेश्चन देख के, एंड इंटरेस्टिंग है, कोई देखो ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल है, कुछ इसमें अलग कर दिया, इट इज जस्ट दैट यू हैव टू फॉलो वन स्टेप एट अ टाइम। लाइक इवन फंक्शन आया, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 पहले ही मिल गया था आपको, और इवन फंक्शन का यूज कैसे करना है, दैट वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट, क्रिटिकल पार्ट, कि इस फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हो इस बात के अंदर, मतलब इस कंडीशन का इस फंक्शन के अंदर कैसे फंक्शनल इक्वेशन में यूज कर सकते हो, दैट इट इज एन इवन फंक्शन and use it to your advantage to find f of x, और जनरल f of x हमने फाइंड कर लिया वहां से, राइट। सो गाइज आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया, मजा आया। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ INMO 2011 and with this thing we have solved overall 72 questions of INMO till now, so 72 videos have already been posted, you can say, with this video, right। so 12 years के papers हो गए complete, so you can go through them as well, okay। so all right guys, that's it from my end today, so keep working, keep practicing, and all the best. Take care guys, bye bye।